بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اجتماعی ساکنین کے بارے میں۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ اجتماعی ساکنین کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے دوستوں نے جو ہے اس بارے میں مجھ سے بہت پہلے بھی سوالات کیے ہیں کہ آپ ہمیں اجتماعی ساکنین کے بارے میں بتا دیجئے، تو آج ہم انشاءاللہ بالکل آسان اور عام فہم طریقے سے آپ کو یہ سمجھانے والے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جو ہے اجتماعی ساکنین کو سمجھتے ہیں۔ اجتماعی ساکنین کہتے ہیں دو ساکن کا جمع ہونا، دو ساکن کا جمع ہونا۔ دیکھیں اجتماعی ساکنین کے اندر دو ورڈز ہے، ایک ہے اجتماع، دوسرا ہے ساکنین۔ تو اجتماع کہتے ہیں جمع ہونے کو، یکجا ہونے کو۔ فار ایگزامپل کہیں پر دینی مجلس ہے اور دینی مجلس کا نام سن کر سب لوگ جو ہے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، یکجا ہو جاتے ہیں، تو ہم اس دینی مجلس کو دینی اجتماع بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ تو اجتماع کہتے ہیں جمع ہونے کو، یکجا ہونے کو۔ کلیئر ہو گیا؟ اب ساکنین کا لفظ ہے، ساکنین کہتے ہیں دو ساکن کو، جیسے قرآن مجید کے اندر بھی مثال ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین۔ تو رب المشرقین ورب المغربین، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب۔ تو مشرقین، مغربین، اسی طریقے سے ساکنین، دو ساکن۔ تو دو ساکن کا جمع ہونا اسے اجتماع ساکنین کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اجتماعی ساکنین سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے جی۔ اب اجتماعی ساکنین کا قرآن مجید کے اندر کیا دخل ہے؟ دیکھیں قرآن مجید کے اندر کچھ کلمات کے اندر دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کو پڑھنے میں ایک بوجھ، ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی وزن کو دور کرنے کے لیے جو ہے قراء حضرات نے کچھ قوانین بتائے ہیں، انہی قوانین کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اب مینلی یہاں پر اجتماعی ساکنین کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا اجتماعی ساکنین علی حدہ، دوسرا اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ۔ تو اجتماعی ساکنین کو آپ نے جان لیا، تو اس کو اب ہٹا لو سائیڈ میں۔ اب کیا بچا؟ علی حدہ، علی غیر حدہ۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے سب سے پہلے سمجھنی ہے۔ دیکھیے علی حدہ کسے کہا جاتا ہے؟ علی حدہ کہتے ہیں جب دو ساکن ایک ہی کلمے کے اندر جمع ہو تو اسے اجتماعی ساکنین علی حدہ کہا جائے گا۔ اب اگر دو ساکن الگ الگ کلمے کے اندر جمع ہو تو اسے اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ اعلی غیر حدہ کہا جائے گا۔ بس یہ اس کا سمپل سا مطلب ہے۔ اعلی حدہ کہتے ہیں جہاں دو ساکن ایک ہی کلمے کے اندر آئے، اور اعلی غیر حدہ کہتے ہیں جہاں دو ساکن الگ الگ کلمے کے اندر آئے۔ اب میں آپ کو ایک لاجیکلی ایک مثال سمجھا دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل یہ مان لو یہ ایک بارڈر ہے، ایک بارڈر کی لائن ہے، یہاں سے انڈیا ہے، یہاں سے پاکستان ہے۔ اب اگر یہاں پر دو بندے آپس میں ملاقات کریں گے، جمع ہوں گے، یعنی وہ ایک دوسرے کو جو ہے گلے بھی مل سکتے ہیں، ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، تو جب وہ دونوں یہاں پر جمع ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر جو یہ دو بندے جمع ہوئے اعلی حدہ، اسے ہم اعلی حدہ ہی کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہی حد کے اندر کھڑے ہیں، ایک ہی حد کے اندر یہ جمع ہوئے، یہ ملے۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر ایک بندہ پاکستان بارڈر کے اندر ہے، ایک انڈیا بارڈر کے اندر ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں بندے یہاں پر جو ہے جمع تو ہوئے لیکن اعلی غیر حدہ ہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی حد میں ہے، یہ اپنی حد میں ہے، تو بیچ میں ایک لائن آ گئی۔ لیکن اب اگر یہاں پر یہ دونوں بندے یہاں پر جمع ہو تو یہ اعلی حدہ ہی کہلائے گا۔ اب اگر یہ الگ الگ سرحد کے اندر بات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ اعلی غیر حدہ ہی ہے۔ یہ لاجیکلی ایک مثال سمجھائی میں نے آپ کو، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اعلی حدہ ہی کہتے ہیں جہاں دو ساکن ایک کلمے کے اندر آئے، اعلی غیر حدہ ہی کہتے ہیں جہاں دو ساکن الگ الگ کلمے کے اندر آئے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب ہم یہاں پر جو ہے سب سے پہلے اجتماعی ساکنین علی حدہ کو جانیں گے۔ اب رہی بات اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کی، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اگر اس کے ساتھ جوڑا جائے تو کلاس بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر جو ہے اجتماعی ساکنین علی حدہ کو جاننا ہے، یعنی دو ساکن کا ایک ہی کلمے کے اندر جمع ہونا۔ اس کی تین صورتیں ہیں۔ دو ساکن کا ایک کلمے کے اندر جمع ہونا، اس کی تین صورتیں ہیں، تین پوائنٹس ہیں اس کے، اس کو آپ اپنی کاپی پر لکھ لیں۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اجتماعی ساکنین علی حدہ کا، وہ یہ ہے کہ دو ساکنوں کا کسی کلمے کے اندر اس طرح جمع ہونا کہ ان میں سے پہلا والا ساکن حرف مدہ ہو اور بعد والا سکون اصلی ہو، اور حرف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہ سب سے پہلا والا پوائنٹ ہے اجتماعی ساکنین علی حدہ کا۔ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے۔ میں نے یہاں پر کہا کہ جب دو ساکن کسی کلمے کے اندر اس طرح جمع ہو کہ ان میں سے پہلا والا ساکن حرف مدہ ہو
اب हरफ मद्दा से मुराद वो अलिफ हो सकता है, वाव हो सकता है, या हो सकता है, क्योंकि हरफ मद्दा हम कहते हैं हरूफ मद्दा में से जो हो, यानी अलिफ वाव या, इसके अलावा और कोई ना हो। तो पहला वाला साकिन हरफ मद्दा हो और बाद वाला सुकून असली हो। अब सुकून असली किसे कहा जाता है? सुकून असली कहते हैं जिस हरफ पर वो दाल जैसा निशान हो, जिस पर जज्म हो, जिस पर सुकून हो, जो आपको दिख रही हो, या जो मुशद्दद हो उसके अंदर भी सुकून असली होता है। जो मुशद्दद होता है उसके अंदर भी जो है एक साकिन सुकून असली ही कहलाता है। ठीक है जी, तो ये इसका कायदा है। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, जैसे सूरह अनाम के अंदर है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द। तो दाब्बतिन का जो लफ्ज है ना, इस पर अगर आप गौर करेंगे ना, इसके अंदर क्या है? दाल अलिफ जबर दा, तो अलिफ क्या है इसके अंदर? अलिफ मद्दा है, और ये साकिन भी है। क्यों? क्योंकि हमने दाल के साथ इसको मिलाकर पढ़ा, और आपको मालूम है साकिन जो होता है वो अपने मा कबल का मोहताज होता है, उसके ताबे होता है। तो हमने पढ़ा दाल अलिफ जबर दा, तो अलिफ इसके अंदर साकिन है और हरफ मद्दा भी है। तो हमने कायदे के एतबार से पहला साकिन हरफ मद्दा हो, आ गया अलिफ साकिन और हरफ मद्दा में से, उसके बाद सुकून असली हो। अब बा मुशद्दद जो है, बा मुशद्दद के अंदर दो बा होते हैं, एक साकिन एक मुतहर्रिक। तो जो पहला वाला साकिन होता है वो सुकून असली ही कहलाता है, या आपने मद्दे लाजिम के अंदर भी जाना है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि पहला वाला साकिन हरफ मद्दा हो और बाद वाला सुकून असली हो, तो हुरूफ मद्दा को जो है उसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाएगा। तो अब यहां पर क्या हुआ? पहले अलिफ मद्दा आया, उसके बाद सुकून असली आया। तो जब दो साकिन आपस में मिले, इनकी मुलाकात हुई, जमा हुए, अब यहां पर कौन सा कायदा है? ये इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही का। तो अब यहां पर हरफ मद्दा को थोड़ा सा खींच कर पढ़ना है। कैसे? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द। अब यहां पर आप तो इसको खींच रहे हैं, यहां पर मद्दे लाजिम का भी कायदा है। मद्दे लाजिम तो यहां पर हो ही रही है, लेकिन यहां पर इज्तिमाए साकिनैन का भी कायदा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो साकिन मिल रहे हैं। जैसे आपने सूरह रहमान के अंदर देखा होगा वखलक़ल जन्न मिन मारिज, तो उसके अंदर भी जब आप पढ़ते हैं ना, तो वहां आप करते हैं वखलक़ल जन्न, तो वहां पर भी क्या हो रहा है? वहां पर भी इज्तिमाए साकिनैन हो रहा है, क्योंकि जान का जो कलमा है ना, इसके अंदर आप देखें जीम अलिफ जबर जा, तो अलिफ क्या है? अलिफ हरफ मद्दा है और साकिन भी है। उसके बाद नून मुशद्दद है, और नून मुशद्दद के अंदर जो साकिन होता है पहला वाला, वो सुकून असली होता है। तो कायदे के एतबार से जब पहला वाला साकिन हरफ मद्दा हो, बाद वाला सुकून असली हो, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर इस हरफ मद्दा को थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाएगा। तो यहां पर जब दो साकिन आपस में जमा हुए, तो अब यहां पर क्या करना है? हमने इसको खींच कर पढ़ना है। मद्दे लाजिम का कायदा तो अलग से हो ही रहा है, लेकिन यहां पर इज्तिमाई साकिनैन की वजह से भी इसको खींचा जाता है। कैसे? जैसे वखलक़ल जन्न मिन मारिज, तो ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट समझ में आया होगा। अब यहां पर चलते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट की तरफ, जो बिल्कुल सेम यही है, बस थोड़ी सी चेंज है। क्या है कि दो साकिनों का किसी कलमे के अंदर इस तरह जमा होना कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो, सेम वही पहला साकिन हरफ मद्दा हो, अब बाद वाला सुकून आरजी हो। इससे पहले क्या था? बाद वाला सुकून असली हो। अब क्या है? अब बाद वाला सुकून आरजी हो। और आरजी किसे कहा जाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, जब भी आप कहीं पर वक्फ करते हैं तो आखिर वाला जो हरफ होता है उसके ऊपर जबर होती है, जेर होती है, या पेश होता है। ठीक है जी। तो हम जब वहां पर वक्फ करते हैं, वक्फ करने की सूरत में हम उस आखिरी हरफ को साकिन कर देते हैं, हम उसको सुकून दे देते हैं। तो जो हमने उसको वो सुकून दे दी वक्फ की सूरत में, उसे सुकून आरजी कहा जाता है। तो हम जैसे मैं आपको मिसाल दूं, तो यहां पर ये कायदा जो है ना, ये भी इज्तिमाए साकिनैन का ही कायदा है। तो इसकी जैसे हम मिसाल ले लेंगे, चलो सूरह फातिहा को ले लेते हैं। हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आलमीन को देखिए, आलमीन, आलमीन एक लफ्ज है, एक पूरा एक कलमा है। ठीक है जी। मीम या ज़ेर मी, तो या इसके अंदर क्या है? या इसके अंदर मद्दा है, हरफ मद्दा है। और यहां हमने या को पीछे मीम के साथ मिलाकर पढ़ा, तो यहां पर जो है पहला वाला साकिन हरफ मद्दा हो और बाद वाला सुकून आरजी हो। अब नून तो जबर के साथ होता है, लेकिन वक्फ की सूरत में ये सुकून आरजी इसको दी जाती है। वक्फ की सूरत में वसल अगर करेंगे, अगर हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान, तो यहां पर इज्तिमाई साकिनैन का कायदा नहीं होगा। लेकिन जब आप यहां पर रुकेंगे तो यहां पर मद्दे आरे तो हो ही रही है, लेकिन इज्तिमाई साकिनैन भी हो रहा है। तो हम यहां पर क्या करते हैं? हमने
यहां पर भी इसको क्या करना है, इस हरफ मद्दा को खींच कर पढ़ना है। क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हम ऐसे इसको करते हैं। तो यहां पर भी इज्तिमाई साकिनैन का कायदा हो रहा है वक्फ की सूरत में। वक्फ की सूरत में इसको याद रखना। हो गए 2 पॉइंट्स। जैसा कि मैं आपको दूसरी एक मिसाल दूं, जैसे हम पढ़ते हैं याअलमून, तो याअलमून के अंदर भी जो है आखिर में क्या हो रहा है, यहां पर भी इज्तिमाई साकिनैन का ही कायदा आ रहा है। जैसे याअलमून, मी वाव पेश मू, तो वाव इसके अंदर क्या है, हुरूफ मद्दा में से, और ये साकिन भी है। तो जब पहला वाला साकिन हरफ मद्दा हो, बाद वाला सुकून आरजी हो, तो जब आखिर में नून है तो वक्फ की सूरत में जब हमने नून को साकिन कर दिया, यानी उसको हमने सुकून आरजी दे दी, अब यहां पर 2 साकिन जमा हुए, तो यहां पर भी इज्तिमाई साकिनैन का ही कायदा आएगा। तो हमने यहां पर वाव मद्दा को थोड़ा सा खींच कर पढ़ना है। कैसे? याअलमून। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं यहां पर तीसरे पॉइंट की जानिब, जो बिल्कुल आसान है। वो ये है कि जब किसी कलमे के अंदर 2 साकिन इस तरह जमा हो कि पहला वाला साकिन गैर मद्दा हो, पहला वाला साकिन गैर मद्दा हो और दूसरा वाला जो हो वो सुकून आरजी हो। बस इतना आपने याद रखना है तीसरे पॉइंट के अंदर। बस इतना जहन में रहे कि पहला वाला जो साकिन हो वो गैर मद्दा हो। गैर मद्दा से मुराद वो अलिफ वाव या मद्दा नहीं हो सकता, वो बा ता सा जीम दाल दाल रा जा सीन शीन सौ दो तो ज़ फा कॉफ काफ वगैरह वगैरह ये हो सकता है, लेकिन मद्दा नहीं हो सकता, यानी अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा नहीं हो सकता, उसके बगैर हो सकता है। क्योंकि हमने अभी ऊपर जो 2 पॉइंट पढ़े उसके अंदर जो है वहां पर हुरूफ मद्दा का ताल्लुक था, लेकिन अब इस तीसरे पॉइंट के अंदर जो है पहला वाला साकिन गैर मद्दा हो और बाद वाला सुकून आरजी हो। उसकी मिसाल कहां मिलती है? जैसे हम देखते हैं ना, सूरह असर पढ़ते हैं, वल अस्र वल अस्र वल अस्र। तो अब यहां पर जब हम असर पर रुकते हैं ना, तो जब हम रॉ पर वक्फ करते हैं, असल में तो है वल अस्री रोजे रे, तो रुकने की सूरत में हमने रॉ को साकिन कर दिया तो सुकून आरजी दे दी। लेकिन उससे पहले क्या है? उससे पहले सौद के ऊपर क्या है? सौद के ऊपर सुकून है और वो सुकून असली है। तो जब वो सौद की सुकून और रॉ की सुकून आरजी जब जमा हुई तो यहां पर इज्तिमाई साकिनैन हुआ। तो अब यहां पर क्या करना है? यहां पर हमने खींचना नहीं है, यहां पर बगैर खींचे इन दोनों साकिन को हमने अच्छे से तहकीक के साथ अदा करना है। क्या करना है? दोनों को खूब वाज़ेह करना है, अच्छे से अदा करना है, खींचना नहीं है, जैसे हमने पहले ऊपर की मिसालों में खींचा। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होगा तीसरे पॉइंट के अंदर। तो यहां पर आपने ये ध्यान में रखना है कि जब किसी कलमे के अंदर 2 साकिन इस तरह जमा हो, उनमें से पहला वाला साकिन गैर मद्दा हो और बाद वाला सुकून आरजी हो। तो इसी तरह से हम करते हैं ना, वल अस्र वल अस्र, तो हम सौद की सुकून को भी और रॉ की सुकून आरजी को भी जब मिलाते हैं तो यहां पर इज्तिमाई साकिनैन जब हो गया, तो अब यहां पर जो है क्या करना है? इन दोनों को हमने अच्छे से अदा करना है। जैसे दूसरी एक मिसाल है सूरह क़द्र के अंदर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। क़द्र, तो अब क़द्र जो है ना, क़द्र के अंदर भी आखिर में रॉ के नीचे जेर है, लेकिन वक्फ की सूरत में रॉ को हमने सुकून दे दी, सुकून आरजी दे दी। दाल के ऊपर तो पहले से ही सुकून है, सुकून असली है, लेकिन रॉ को जब हमने सुकून आरजी दे दी तो यहां पर 2 साकिन जब जमा हुए तो ये हो गया इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही। अला हद्दिही क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अल क़द्र जो है ना, ये एक कलमा है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है जी, वल अस्र ये एक कलमा है, इसलिए अला हद्दिही के जुमरे में आया। याद रखना, जो इससे पहले भी मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया, अला हद्दिही अला गैर हद्दिही का क्या माना है। तो ये अला हद्दिही की तीनों किस्में हैं। ठीक है जी, तो ये अला हद्दिही के ही 3 पॉइंट से इसको जहन में रखिएगा। ठीक है, तो यानी 2 साकिनों का एक ही कलमे के अंदर आना। अभी तक जितनी भी हमने मिसालें देखी उनके अंदर जो है 2 साकिन जमा हो रहे थे एक ही कलमे के अंदर। ठीक है, तो यहां पर भी हुआ अल क़द्र। अल क़द्र, तो दाल जो है उसके ऊपर भी सुकून है और रॉ को भी हमने सुकून आरजी दे दी, लेकिन वक्फ की सूरत में। अब अगर हम यहां पर वक्फ ना करें तो यहां पर क्या होगा? यहां पर इज्तिमाई साकिनैन का कायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही समझ में आया होगा। इनके 3 पॉइंट्स भी आपको समझ में आए होंगे। इनको अपनी कॉपी पर नोट करें, इनको जहन में रखें, इंशाल्लाह कुरान मजीद के अंदर अप्लाई करें, आपको बहुत आसानी होगी। तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है,
رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے رہنما